This chapter was completed. So now take out your pencil and do A, B, C of this chapter. Okay? Take out your pencil. Yeah. Under the Mahalwari system, the word Mahal means The group of villages. Group of villages. a group of villages. Then the Rayatwari system was introduced by Thomas Munro. Thomas Munro. Very good. Thomas Munro. The other name for Jamindari Bandobast was Permanent revenue system. very good. कुछ अच्छा लग रहा है. कुछ बच्चे आज आस्था आज बोल रहे Permanent revenue बोल रहे हैं. Very good. Permanent revenue system. Who was the leader of the Santhals revolt? Shadu and Kuner. Sindhu and Birsa Munda. Sindhu and Kanu. Sindhu and Kunu Murru. हाँ. Sindhu and Kanhu Murmu. संथाल. Yes. संथाल एक बार देख लो. मुंडा में थे बिरसा मुंडा और संथाल में थे सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू. ठीक है. चैप्टर में सिद्धू दिया हुआ है और यहाँ पे शायद यहाँ भी तो सिद्धू दिया हुआ है. सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू. ठीक है. चलिए. Where did industrial revolution begin first? England. England. Very good. Very good. English shattered the self-sufficient Rural dash. economy. क्या? Rural economy. Rural economy. Yes. RURAL. Rural economy. Many tribals left forest in search of Work. yes. Work. Very good. Work. Very good. Jamindari system was introduced in Bengal by Lord Cornwallis. Lord Cornwallis. Very good. Very good. Dash revenue was the biggest source of income Land. for Land. the land revenue. Very good. Land revenue. Basic or dash industry started in India after independence. Key. Key. Textile. क्या बोले? No, ma'am. Textile. Ma'am, key.
टेक्सटाइल। नहीं नहीं, और तभी की तो बताई। बेसिक एंड हेवी है कि की है, वो थोड़ा भूल रही हो। मैम की है, बोलो। मैम की है शायद। की है ना? हाँ की है, बेसिक और की। लास्ट लाइन, इट वॉज ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट बेसिक और की इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रायोरिटी। की होगा KEY, ठीक है? मैम हाँ टेक बोलो। द करेक्ट ऑप्शन एक बार बोल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बोल देंगे। नंबर 1, ए ग्रुप ऑफ विलेजेस। नंबर 2, थॉमस मुनरो। Number 3, permanent revenue system. Number 4, Sidhu and Kanhu Murmu. And number 5, England. Okay? ओके मैम, थैंक यू। अब C. Next, number C, write true or false. Before the advent of East India Company, the rural life in India was simple and self-sufficient. ट्रू। Yes. True. Very good, very good. True. The British wanted to smuggle and sell opium in Spain to earn profit. False. False, false. तब कहाँ पे स्मगल करना चाहते थे? चाइना में। चाइना। मैम चाइना में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैम चाइना में। Very good, very good. Kisan Sabhas were formed in 1930 to support the cause of peasants. True, very good. False. The Khonds of Orissa practiced shifting agriculture. True. True. ठीक है? True. The tribal chiefs lost all their powers and were forced to follow the laws made by the British officers in India. False. 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 फॉल्स फॉल्स। False. सुन लो, पहले मीनिंग समझो, हम भी नहीं जान रहे क्या होगा। 1 मिनट पहले हम लोग, सेंटेंस इज वेरी लेंदी, सो वी विल give a pause, wait, and then read the sentence and try to understand. क्या कह रहा है कि ट्राइबल चीफ लॉस्ट ऑल देयर पावर्स, सही में पावर तो खो दिए थे, एंड वेयर फोर्स टू फॉलो, और उनको मजबूर किया गया कि फॉलो करे क्या? द लॉज, वो कानून, मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स True. थे। True. हाँ, इसमें True. गलत की कौन बात है? ठीक है, अनस्टेबल विलेजेस। देन अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ महलवाड़ी सिस्टम। मेन फीचर, तो चलते हैं मेन फीचर में महलवाड़ी के। आप किस में से करोगे? इस चार्ट में से करोगे या फिर उधर ही चलोगे पैराग्राफ में? 1 मिनट, मैम चार्ट में से मैम। देख लेते हैं, जहाँ अच्छा रहेगा, जहाँ इजी रहेगा आपके लिए, वहीं से करवाते। ठीक है, हम देखते हैं 1 मिनट महलवाड़ी सिस्टम के फीचर्स। कर दो चार्ट में से। लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू महल्स। मैं चार्ट में से बोल रही हूँ। फिर एक बार पलट के हम लोग उस पेज में भी जाएंगे जहां इसे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दोनों में से कुछ कुछ लेकर हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ चार्ट से शुरू करते हैं। लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू महल्स। 1 पॉइंट। ईच महल कंप्राइज्ड ऑफ 1 or more villages। 2 पॉइंट। Village committees were responsible for tax collection। 3 पॉइंट। और फिर
आ जाइए पीछे। यहाँ महलवाड़ी का सेकंड पैरा देखिए, फोर्थ पॉइंट, इट प्रूव्ड, महलवाड़ी सिस्टम मत लिखिए, इट लिख दीजिए, लास्ट पॉइंट में उसे इट से शुरू कीजिए। इट प्रूव्ड टू बी ए कर्स फॉर द पीजेंट्स in the form of impoverishment and eviction from land. Impoverishment and eviction from land. मैम फिर से बता दीजिए तो। फिर से बता देते हैं। मैंने मैम चार्ट के आगे वाला पहले 3 पॉइंट आपका, पहला 3 मैम पॉइंट चार्ट में से, और लास्ट पॉइंट आप पेज 113 में आइए, महलवाड़ी सिस्टम का सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन, सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन, दिस सिस्टम या फिर इट प्रूव्ड टू बी ए कर्स फॉर द पीजेंट in the form of impoverishment, eviction from land. हो गया? चलिए। यस मैम। हाँ, हम लोग का D1 हो गया। अब हम लोग करते हैं D2. Why did the British force Indian farmers to grow commercial crops? तो यहाँ पे लिखिए, इसको एक लाइन लिख लीजिए। ये यहाँ जो व्हाइट जगह है यहाँ पे पेंसिल से लिख लो, लिख लो, शुरू करते हैं। कमर्शियल क्रॉप्स आर वेरी मच प्रॉफिटेबल। Commercial crops are very much profitable for the British. So they forced the farmers to grow those crops. So they forced the farmers to grow those crops. क्या लिखवाई? Commercial crops are very much profitable for the British. So they forced the farmer to grow those crops. हाँ. So they forced the farmer to grow. So Grow they those crops. forced the farmers to grow those crops. Grow those crops. ठीक है? अगर Yes, थोड़ा ma'am. ज्यादा मार्क्स है, में ये पूछता है, तो थोड़ा सा कमर्शियल क्रॉप्स का नाम भी लिख देना, क्या क्या है। तो इंडिगो है, कॉटन है, Cotton. हाँ, इंडिगो, कॉटन और शुगर केन का एग्जाम्पल दे देना कि दे वेर फोर। अगर इसे ज्यादा मार्क्स में पूछे, जैसे कि they were forced to grow indigo, they buy it at very low rates and sell it in the European market at a high price. इतना लिखना ही काफी है, या कॉमा 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 देकर सारा लिख दो। They bought cotton, comma, indigo, comma, sugarcane, comma, and bought it at a high price in European market. शुगर केन तो डायरेक्टली नहीं बेचता था, उसका चीनी बनाता था, तो ना भी लिखो तो चलेगा। या फिर ठीक चलेगा, चलेगा। हाँ ठीक, समझ गए ना। मतलब अगर तुम लोग को वहां पे डिसाइड करना होगा कि इसमें और कितना लिखना चाहिए। ये क्लास अब ऐसा नहीं रहा किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेशली साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस,
ये 3 सब्जेक्ट में ही बच्चों को कंपार्ट लगता है, ये 3 सब्जेक्ट के ही रिजल्ट खराब होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ट्विस्ट करके दे दिया जाता है। और अगर पढ़े रहो क्लास में अच्छे से तो कितना भी वो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के तुम्हारे सामने पेश करे, तुम्हें जरा भी मतलब चिंता ही नहीं होगी कि इसमें क्या लिखना है। तुम झट समझ जाओगे अरे ये तो वही आंसर है, यूं ही ऐसे पूछा है, बस उस आंसर को लिख दोगे। तो हम लोग करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करूंगी, और जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं आप लोग मैं क्लास में ही रिटन वर्क करवा दूंगी। 5-5 मिनट का समय दूंगी एक आंसर को लिखने के लिए। आप लिखना और फिर हमें सुना देना या बोल के सुनाना, चॉइस इज योर्स। जिसे लिख के सुनाना पसंद है वो लिख के सुनाना, जो सुनते के साथ बोल के मुझे सुना सकोगे वो बोल कर सुनाना। देख कर नहीं करना, कोई भी काम नहीं आता है चुप रहो, वैसे भी बहुत लोग चुप ही रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहेंगे इम्प्रूवमेंट, जो चाहेंगे कि नहीं मैम जब पढ़ा रही है, मैम जब क्वेश्चंस पूछ रही है तो मुझे बोलना चाहिए, तो वो जरूर ही अटेम्प्ट करना। और 10 बार किसी बच्चे को अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते सुनोगे, तुम्हारे सब कॉन्शियस माइंड में उन बच्चों के भी बैठ जाएगी जो चुपचाप मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। वो भी फिर सोचने लगेंगे कि क्यों ना हम भी रिप्लाई करें। ठीक है, तो चलिए अब D3 में What was the impact of colonial rule on the tribals of India? Mention any 3 tribes वाले पेज में आ जाइए, पेज नंबर 116, वो पैरा इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल लाइफ। पेज नंबर 116, impact on the tribal life. Last para. Many tribals had to leave their forest homes in search of work. 8 point. Second point, a large number of them were recruited through contractors to work in the tea plantations. Next, they were मैम कहाँ पे? अरे कितनी बार बोली, रिपीट कर दीजिएगा मैम, रिपीट कर दीजिए please. पेज नंबर 116, इम्पैक्ट पेज ऑन द नंबर 116 ट्राइबल लाइफ वाला पैराग्राफ का लास्ट पैरा। मेनी ट्राइबल्स, पॉइंट वाइज हर फुल स्टॉप को एक एक पॉइंट बनाते जाओ। Many tribals had to leave their forest homes in search of work. A large number of them were recruited through contractors to work in the tea plantations. They, आगे बढ़ो, third point, they were paid low wages. Wages मतलब मजदूरी। एक पॉइंट और बना सकते हो, एंड छोड़ दो, वेयर के ऊपर दे लगा दो। दे वेयर नॉट अलाउड टू गो बैक होम। अब जो टी प्लांटेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कुछ मजदूरों की बहाली हुई, कहाँ पे? दूर में, असम में। ठीक है, मान लो बिहार से ही ले गया कुछ ट्राइबल्स को और असम ले गया, मान लो सपोज, और उनको घर जाने का परमिशन नहीं था, ऐसी खराब स्थिति थी। देखो ना, द प्लाइट ऑफ द कोल माइन वर्कर्स वाज नो लेस मिजरेबल। और बहुत ही हार्श कंडीशन में करे, बहुत ही
एडवर्स कंडीशन में उनको काम करना पड़ता था। तो 4 पॉइंट हमने यहां से आपको करा दिए। अब है D4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बिरसा मुंडा। चलते हैं बिरसा मुंडा वाले पेज में 118। एज लास्ट पैरा बिरसा मुंडा जहां बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं उसके ऊपर से ही हम लोग शुरू करेंगे। इन 1895 बिरसा मुंडा, a young boy, emerged as hero of tribals. एक पॉइंट, he urged them to continue to work on their own land to earn their living. 2 पॉइंट, this would end all their sufferings. उसी में कर दो, उसी में करो, सेकंड में ही। He urged them to continue to work on their own land to earn their living. This comma देकर this would end all their sufferings. As the Birsa movement spread, popularity of Birsa Munda also increased. Next, he told his people that land policies of the British, नीचे आओ, destroying their traditional land system. फिर ही लगाओ, he was jailed for 2 years, but on his release, he instigated the tribals to attack zamindars. Next, he raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. This movement ended in 1900 with the death of Birsa. ये पूरा ही मतलब होगा। D4, मैम मुझे पॉइंट वाइज लिखना है इस पूरे पैराग्राफ को। मैक्सिमम आंसर पॉइंट ही वाइज लिखना। पॉइंट वाइज तो मैं बोल ही रही थी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। यस मैम पॉइंट वाइज। Highlight any 3 changes that took place in modern industry in the 19th century. Last para 119 page. First point, tea became the third line. Tea became the biggest plantation industry in Assam. Indian tea topped the world market and England became its biggest buyer. Second होगा, नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाओ। With the expansion of railways, the demand for coal, iron and steel increased. फिर एक लाइन इंक्रीज्ड, हाँ फिर उसी में लिखो because of far-sightedness and determination of Jamshedji Tata, the world-class famous company like Tata Iron and Steel Company came up. अब लास्ट बनाओ। Passage of time. Cement, chemical and sugar industries also were लगा दो, WERE, were also developed. With the passage of time, cement, chemical and sugar industries were also developed. हो गया, डी के सारे हो गए। अब है E1,
List the main features of permanent settlement. How did the production of opium, indigo, and sugar shoot up the profit margins of East India Company? बारी बारी से सबको तीनों को लिखना होगा। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दो पार्ट में भी सेकंड पार्ट में आपको 3 पॉइंट तीन चीज से रिलेटेड बातों को शामिल करनी है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोग फीचर्स लिखेंगे परमानेंट सेटलमेंट की। चलिए उस पैराग्राफ में चलते हैं। पेज 112। First point, Jamindari system was made a hereditary right of the Jamindars under the permanent settlement. एक point, Jamindari system was made a hereditary right of the Jamindars under the permanent settlement. Second point, ठीक उसके नीचे देखो, where made the owners, where के ऊपर तुम जमींदार्स लगा दो। देखो इसमें हम लोग डेट वगैरह नहीं दे रहे हैं, किसने स्टार्ट किया नहीं दे रहे हैं, कहाँ स्टार्ट हुआ नहीं दे रहे हैं, बिकॉज कि इसमें व्हेन, व्हाट और हु ये सब नहीं पूछा है, फीचर्स पूछे हैं। तो जब फीचर्स में इतनी सारी सेंटेंसेस है ही लिखने को, तो हम लोग बिना वजह इधर उधर लाइन सेंटेंस नहीं लेंगे। क्या समझे? फीचर्स में 3-4 लाइन हमारे पास है, इसलिए who started it, when started it, where it was implemented, ये सब नहीं लिखेंगे। तो शुरू की थी, फर्स्ट लाइन बताई, सेकंड बताई, जमींदार्स were made the owners of the land and were forced to pay 89% of the total revenue to the British government. थर्ड हो गया, their own share was 11% हुआ। अच्छा, और एक पॉइंट और, दिस सिस्टम gave birth to a new class of landlords consisting of the rajas, new class of landlord करके छोड़ दो, न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड करके छोड़ दो। अब हम लोग चलेंगे सेकंड पैरा में, क्योंकि सेकंड पैरा में हम लोगों को बहुत कुछ लिखने हैं, और सेकंड पैरा में भी हम लोग सबसे पहले लेंगे किसको, क्वेश्चन में है ओपीएम। ओपीएम लिख करके हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, ओपीएम लिखकर अंडरलाइन कर दिए। अब चलिए उस पेज में 113 लास्ट पैरा। ऐसा करते हैं, ऊपर वाले पैरा का फोर्थ लाइन देखते हैं। 113 ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स वाले पैरा का फोर्थ लाइन में से एक पॉइंट पहले लेते हैं। द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वॉज परचेज्ड at very low rates and sent to England. अब आते हैं सेकंड पैरा में। ओपीएम लिख चुके हो, अंडरलाइन कर चुके हो, वहां से ये फर्स्ट लाइन शुरू हुआ कि द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल was purchased at a very low rates and sent to England. फिर लिखेंगे ब्रिटिशर्स wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profits. नहीं, so that they could मत लिखना, वहां पे काट दो और लिखो which helped them to earn huge profits। फिर से पढ़ती हूँ इस लाइन को
क्या काटना है अपने समझ लेना। The Britishers wanted to smuggle and sell opium to China. लिखो, which helped them to earn huge profits. अब समझ आया? किसी को प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब हम लोग चलेंगे, ओपियम हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में इंडिगो है, इंडिगो लिखकर अंडरलाइन कीजिए, हाइफन दीजिए। अब इंडिगो का लिखना शुरू करेंगे। फिर उसी पेज में आ जाते हैं 113 में, ठीक, चाइना के नीचे वाला लाइन। इंडिगो, आगे बढ़ जाओ, was in great demand in the textile industries of Britain. फिर सो लगा दो, so the peasants were forced to cultivate indigo. Forced to cultivate indigo plants to extract blue dye. ठीक है, क्या बोले? इंडिगो was in great demand in the textile industries of Britain, so the peasants were forced to cultivate indigo. पेज नंबर 114। अब हम लोग चलेंगे, शुगर लिखकर अंडरलाइन करेंगे और पहला लाइन वही है। अब दो वर्ड पहले ही लगाओ, ड्यू टू, DUE, ड्यू, TO2, due to the rising demand of sugar, due to the rising demand of sugar in the West, due to the rising demand of sugar in the West। दो वर्ड फिर ऐड करो, ब्रिटिश forced many Europeans to set up sugar plantations। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। To rising demand of sugar in the West। हाँ, अब वहां गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार सुन लो। Due to rising demand of sugar in the West, British forced, नीचे आ जाओ, British forced the farmers to produce those crops। एक मिनट, यहाँ पर तो गुड़ लिखा हुआ है, जैगरी फॉर लोकल रिक्वायरमेंट, वो तो पहले होता था, टू प्रोड्यूस, ठीक है। हाँ, यस, मिल गया। देखो, ब्रिटिश फोर्स्ड द फार्मर्स टू, आगे चले जाओ, प्रोड्यूस थिकेंड सुगर केन जूस। हुआ? फिर करती हूँ इसे रिपीट, थोड़ा हौच-पौच हो गया। The rising demand, due to the rising demand of sugar in the West, British forced the farmers to, एकदम लास्ट में चले जाओ, produce thickened sugarcane juice for the sugar factories and sell their produce at a very low price, and sell their produce at a very low price। हो गया? ये हम लोगों का E1 हो गया। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी। तो बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक तरफ रैयतवाड़ी लिखेंगे, एक तरफ महलवाड़ी लिखेंगे,
उसके लिए चार्ट में ही आपके कंपैरिजन दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिख दीजिएगा, इट वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? परमानेंट सेटलमेंट का फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट वॉज स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड बाय, इट वॉज, देखो ना चार्ट में उस लाइन को ले लो, चार्ट में सेकंड लाइन को ले लो, परमानेंट। बोलो मैम मैम रोतवारी और महलवारी में करने बोला है। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, परमानेंट नहीं बोला है। अच्छा, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, सॉरी सॉरी, ठीक है, सेकंड वाले में चलो, सेकंड वाले में चलो, वही काम करो, वही काम करो। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, और महलवाड़ी में लिखो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। सेंटेंस में सिर्फ वर्ड फ्रेम कर लो, बाकी तो लिखा ही हुआ है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, और महलवाड़ी में करो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी। आप थर्ड वाले कॉलम में चले आओ, तुम्हारे चार्ट के थर्ड वाले कॉलम में चले आओ, ठीक है। थर्ड कॉलम में क्या है? डेट है। क्या होगा? इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1793, और इसमें होगा, दूर फिर गलत बोल रहे, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1820, मेरा ध्यान ऊपर चला जा रहा है। और सेकंड में करो, महलवाड़ी में करो, इट वॉज स्टार्टेड इन 1822। अच्छा, फिर एरिया कर दो, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, या फिर इंट्रोड्यूस्ड लिखो, INTRODUCED। इट वॉज, नेक्स्ट कॉलम में चलो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया, और इसमें करो, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गैंजेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। अब फिर प्रोविजन में एक एक पॉइंट दे दो कि इन महलवाड़ी में कर दो, लैंड वाज डिवाइडेड इनटू महल्स एंड ईच महल एंड विलेज कमिटीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन। ये दो लाइन दे दो महलवाड़ी में, और रैयतवाड़ी में दे दो कि ओनरशिप